Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आनंद यात्रा पर। तो चलिए आज हम जा रहे हैं एक नई लोकेशन पर। मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। आज हम जो जा रहे हैं वह है इस्कॉन टेम्पल विच इज़ सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली। तो उसके लिए हम लोग नेहरू प्लेस जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ से जाएंगे। उसके बाद आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल रास्ता जो है वो पास में ही बहुत ही प्यारा सा एक गार्डन है आस्था कुंज, उसमें से होते हुए प्यारा सा रास्ता बना हुआ है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो इस्कॉन टेम्पल है वो एक फुट हिल्स यानी हिल्स पर सिचुएटेड है। तो इसीलिए जो ये लोकेशन है बहुत ही प्यारी है। आप इस जगह को एज अ टॉप व्यू भी यूज़ कर सकते हैं टू हैव अ ग्रेट व्यूज़। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर कुछ पत्थर्स यानी रॉक्स भी सिचुएटेड हैं जो कि बहुत ही प्यारा व्यू देते हैं। आप यहाँ पर अपने अच्छे से फ़ोटो क्लिक्स भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से मंदिर का व्यू भी बहुत ही प्यारा है। तो हम लोग एक्सप्लोर करते हुए आप देख सकते हैं कुछ शॉट्स मंदिर के। व्हाट अ अमेजिंग प्लेस टू बी इफ़ यू आर ट्रू डिवोटी ऑफ कृष्णा। देखिए चारों तरफ ये वह पहाड़ी है जो कि काफ़ी नज़दीक है इस्कॉन टेम्पल के। तो चलिए हम लोग मंदिर की ओर बढ़ते हुए, इस्कॉन मंदिर जो कि दिल्ली में श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा बनवाया गया था। नाउ आई वांट टू मेंशन सम इंटरेस्टिंग things about Srila Prabhupada, a well-known sannyasi, a glorious spiritual master at the age of 69 who changed people's mind with love, reverence and unfathomable dedication, set a new record in the world and showed Indian civilization in front of everyone in corner of the world. So you see, he's a sannyasi, but how much powerful he is. He is so powerful that he changed the world. Now moving on, glorious Srila Prabhupada, his journey from devotion to establishing ISKCON. India has been the land of sages for millions of years. Thousands of saints have irrigated this land with their knowledge. This Vedic culture is considered to be the biggest heritage in the world, but in the period under the rule of invaders, this previous culture has declined. So, Srila Prabhupada, today, it's all because of him. There is no corner left in the world where there is no Lord Krishna devotee. Whether it's America or Europe, Arab countries or China, Taiwan or Japan, in the world at every place. Lord Jagannath Rath Yatra is organized every year to establish
Krishna. So you can see Srila Prabhupada has give his role. Now moving on to about ISKCON Delhi. ISKCON Delhi is also known as Sri Radha Parthsarthi Mandir, a well-known Vaishnav temple of Lord Krishna and Radharani. It was inaugurated on 5th April 1998 by the former Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee. It is situated at Hari Krishna Hills, Sant Nagar, east of Kailash area, South Delhi, India. Now, thus the famous Sri Radha Parthsarthi Mandir located in the Hari Krishna Hills in the east of Kailash area of New Delhi, also known as ISKCON Delhi Temple, was inaugurated on 5th April 1998 to encourage the practice of Bhakti Yoga or Krishna consciousness with an estimate of rupees 12 crores. After crossing the major hurdle of obtaining land for the temple, shoot forward to the present with consistent efforts of Lord Krishna devotee Gopal Krishna Goswami and his dedicated team members who stood through the constant legal deliberations. The temple at Chipwada was finally transferred to ISKCON, fulfilling Srila Prabhupada's dream. It was the dream of Srila Prabhupada. Now, what you need to must see if you are visiting ISKCON Delhi. The ISKCON sanctuary in Delhi houses the astounding Bhagavad Gita, which is ostensibly the most important religious book at any point printed. The book weighs more than 800 kilograms. It also has an Italian version for the readers. Gift shops and libraries of devotional music, CDs and books. A museum that sorts out interactive media shows displaying extraordinary sages like Ramayana and Mahabharata is enriched by painting all over. Performers from all over the world give a chance to present their abilities by performing different scenes from the incredible sages of Hinduism at the open theatre the complex has. No doubt it is known as the Temple of Performing Arts, bringing alive the spiritual culture of India. It is a temple where the Vedic culture, the important or the various important activities that are prevalent in olden times now coming up again. Now important information. Location I already told you. Nearest metro station is east of Kailash. This mandir is open all days. Timing will be 4:30 am to 1 pm, 4 pm to 9 pm. Now Aarti timings is Mangal Aarti 4:30 am in morning, Dhoop Aarti 7:15 am in morning, Raj Bhog Aarti 12:30 pm, Ustapan Aarti 4:15 pm, then Sandhya Aarti 7 pm in evening, Sayan Aarti 8:30 pm. Now moving on to further, I want to discuss more about Srila Prabhupada, who is a Vaishnav Guru who founded ISKCON, which is also known as Hare Krishna movement. He was the representative and messenger of Chaitanya Mahaprabhu. I think you all know who is Chaitanya Mahaprabhu. He is really a great devotee or a bhakta, that is one filled with the love of God. Srila Prabhupada was born on 8 September 1896 in Calcutta, whereas he took his last breath on 14 November 1977 at the age of 81 in Vrindavan. Vrindavan is a place filled with the consciousness and vibration. Now दोस्तों, कुछ ही देर में तुलसी पूजन स्टार्ट होने वाला था। ये बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं कि तुलसी जो का पौधा होता है उनकी पूजा की जाती है। आप देखें, बहुत ही अमेजिंग, मतलब सभी लोग मिलकर तुलसी की आरती होती है, फिर सभी लोग उनका पूजन करते हैं, सभी प्रेम पूर्वक उनकी आराधना, उनके स्पंदन, उनके प्रेम को महसूस करते हैं। आप सामने देख सकते हैं सभी लोग कितने भक्ति भाव पूर्व से
तुलसी जी की चक्र पूरा करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं तुलसी माँ का, और साथ ही साथ संकीर्तन चालू है, चांटिंग द नेम ऑफ गॉड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी के बाद ये हरि बोल डांस, बहुत ही झूमते हैं लोग कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में, कृष्ण आनंद में। और ये कैसी जगह है, आप वहाँ पर जाएंगे तो अपने आप को खुद नहीं रोक पाएंगे। यू विल ऑल्सो डांस लाइक अ मैड डिवोटी ऑफ कृष्णा हु जस्ट फीलिंग द लव, मस्ती के माहौल में, मस्ती के मूड में। और उसके बाद संकीर्तन भी हुआ, सभी लोगों ने, भक्तजनों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक, बड़ा ही आनंददायक, एनर्जेटिक संकीर्तन गाया। उसके बाद शाम की आरती के लिए और हरि बोल डांस के लिए सब तैयार होते हुए सामने देखें, हर कोई आनंद में, हर कोई प्रेम में। सामने देख सकते हैं राधा रानी जी की मूर्ति है। सामने हमारे 3 मंदिर हैं, तीनों जगह देखें आप, तीनों जगह जब भी आएँ दर्शन करें, बहुत ही अमेजिंग प्लेस, वेरी नाइस। सामने नरसिम्हा जी सामने दिख रहे हैं आप लोगों को। हरि बोल, हाथ उठाएं और जस्ट फील द वाइब्रेशन ऑफ कृष्णा। इस्कॉन दिल्ली की वाइब्रेशन को महसूस करें। और ये मैं आप लोगों के सामने एंजॉय करता हुआ आप लोगों को सारे मूवमेंट्स, अमेजिंग एनर्जी और इस जगह के वाइब्रेशन से अवगत कराता हुआ, मुझे तो यहाँ बहुत ही मज़ा आया उस दिन। आई रियली एंजॉय दिस प्लेस। आप यहाँ पर आएँ, झूमें, मस्त दर्शन करें कृष्ण, और साथ में ये आरती घुमाते हुए, ये देखिए कितना प्रिय डांस हो रहा है। ऐसे से वही डांस कर सकता है जिसको कोई चिंता नहीं लाइफ में, जो अपने में ही मस्त है, अपने में ही आनंदित है और ईश्वर भक्ति में लीन है। अदरवाइज दोस्तों, आप नॉर्मली लाइफ में देखेंगे लोगों के चेहरे इतने प्रसन्नचित नहीं होते, बट इस जगह एक ऐसी वाइब्रेशन, ये इस्कॉन का द्वार है। ये हम लोग सामने की ओर जाते हुए आप व्यूज़ देखें, शाम का समय है और एक अलग ही तरह की यहाँ पर शांति। यहाँ पर वैदिक एक्सपो भी है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दुनिया की सबसे बड़ी जो भगवत गीता की पुस्तक है वो यहाँ पर मौजूद है। उसका श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था कुछ ही दिनों पहले। ये शाम को प्रसाद, खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, बहुत ही टेस्टी और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ। जैसा कि कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये हम लोग मंदिर की ओर बढ़ते हुए दूसरे द्वार से, मंदिर के आने के लिए 2 तरफ से द्वार हैं, अभी हम लोग पीछे की द्वार से अंदर एंट्री करते हुए। बहुत ही अमेजिंग प्लेस रियली दोस्तों, आप सभी को यहाँ आना चाहिए। चलिए आइए, मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है यहाँ पर वैदिक एक्सपो की एंट्री। आप अंदर जाके सामने, अगर शाम के समय आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही प्यारे प्यारे फाउंटेन्स, अमेजिंग लाइटिंग शो, और सामने देख सकते हैं मंदिर रात को एकदम सजी हुई दुल्हन की तरह दिखाई पड़ता हुआ। बहुत ही अमेजिंग व्यू, व्हाट अ ग्रेट व्यू इट इज़ रियली दोस्तों। आई रियली लव दिस प्लेस। शाम के समय एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही कॉन्शियसनेस, एक अलग ही अवेयरनेस। आप यहाँ, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल आनंद यात्रा पर। आज हम एक नई जगह पर और एक नई लोकेशन पर आए हुए हैं, जो कि है इस्कॉन मंदिर, नेहरू प्लेस में स्थित है जो कि। और हमें यहाँ पर स्वामी जी मिले। अब ये यहाँ के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ की क्या मान्यता है इस मंदिर की, जो इस्कॉन मंदिर है नेहरू प्लेस में। तो स्वामी जी आपका स्वागत है और आप बताएं इसके बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मेरा नाम तो बलि प्रसाद दास है, तो मैं इस मंदिर में सेवा करता हूँ। तो इस मंदिर का मेन उद्देश्य है लोगों को सुधारना, लोगों को वो चीज़ देना जो कि अभी समाज में अभाव है जिस चीज़ का।
तो वो हम देते हैं अनेक माध्यम से, जैसे मैं इनको बता रहा था कि Great. हम भगवान का सुंदर दर्शन देते हैं। मंदिर भी सुंदर है ताकि लोग आकर्षित हों, भगवान से आकर्षित हों, और भगवान तो सर्व आकर्षित हैं, तो इसलिए उनका मंदिर भी आकर्षित होना चाहिए। Correct. तो इसलिए ये भव्य मंदिर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा में हमने बनाया है। तो इसमें कई लोग दर्शनार्थी आते हैं, जैसे हमारे क्या नाम है, आशीष जी आए हैं। तो ये योगा टीचर हैं, तो भगवान ऊपर जो हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े योगा टीचर हैं, वो तो योगेश्वर हैं। बोला जाता है। Yes. तो उन्होंने भगवद गीता में अनेक योग सिखाए हैं, जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। 4 जो योग ध्यान हैं, योग। आज ही हम लोग Yes. भगवद गीता में पढ़ा है। गीता पढ़ा रहे थे सर हमको। तो यही ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे योग का हमें परिचय हाँ, है। और लास्ट में भगवान बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, यानी भक्ति योग से व्यक्ति मेरे को जान सकता है। परफेक्ट। तो इसलिए योगों में सबसे जो योगों का भी शिरोमणि वो भक्ति योग है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस जैसे योगा टीचर ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, तो योगा में भी आप भक्ति योग को अपनाइए अपने जीवन में। इससे आपका जीवन सुधरेगा, आप अपने बुरे आदतों से छूट पाएंगे, और आप अपने जीवन को एक पॉजिटिव और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विद रिन्यूड एनर्जी आप जी सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस। थैंक यू स्वामी जी। और जैसे आज आपने बोला कि भक्ति योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं कल इस बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं जनरली क्वेश्चन काफ़ी करता हूँ चीज़ों से। तो मैंने खुद महसूस किया कि हम चीज़ों को जानते हैं, हमारा माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है, बट स्टिल हम कहते हैं कुछ और। हाँ, बट जब हम भक्ति जैसे भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, जो आनंद हम हृदय में महसूस करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं। भक्ति में आपको कोई चीज़ छोड़ने की जरूरत छोड़ने की जरूरत नहीं आप है। गाते हो Correct. भगवान के लिए गाइए, आप नाचते हो क्लब्स में जाकर के, Perfect. यहाँ भगवान के सामने नाचिए, खाते हो बढ़िया प्रसाद मिलता है, भगवान का भोग लगा हुआ वो खाइए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। भक्ति होगी सिंपलेस्ट वे टू अचीव गॉड। और ये मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज के बाद सीमित हो जाती है, मतलब उसका अनुभव जब तक ना हो हमें, तो वो चीज़ हमें एक्सपीरियंस नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जैसे आज हमारे गुरुदेव हमको बता रहे थे कि अगर आपको जीवन में कोई एक किताब पढ़ने को मिले, आप कुछ मत पढ़ो, अगर एक किताब तो आप श्रीमद् भगवद गीता, और इसमें भगवद गीता में हम देखें तो हर किसी के लिए कुछ है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई बच्चा हो जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। जैसे उसमें बोला गया योगा कर्म सु कौशलम, तो योग क्या है? कर्म का जो हम कौशल, स्किलफुल एक्शन, और हर तरह की उसमें बात की गई है। तो मतलब अगर किसी के भी हर प्रश्न का, जैसे बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, हर प्रश्न का भगवद गीता में आपको उत्तर मिलेगा। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़िए भी, और मंदिर में सिखाया भी जाता है, तो आप मंदिर में आकर के भगवद गीता का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। बिल्कुल, अभी स्वामी जी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक गीता का कोई कॉन्फ्रेंस है, तो उसके बारे में और बताएं स्वामी जी। तो इसमें सैटरडे शाम को हमारे इस मंदिर के प्रेसिडेंट हैं मोहन रूपा प्रभु, उनका नाम है। आई होप आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं, मोहन रूपा प्रभु। तो ही हैज़ हिज प्रेजेंस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो वो साक्षात यहाँ पर फेस टू फेस प्रोग्राम कर रहे हैं भगवद गीता के ऊपर। एक 7 डे सेमिनार है, जिसमें 7 सैटरडेज़ में हम भगवद गीता का कंप्राइज एक पैकेट फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। 7 to 8:30 होता है वो प्रोग्राम एवरी सैटरडे। तो आप भी अगर पास में रहते हैं, ईस्ट कैलाश दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं, और आप भी ज्वाइन करके इस भगवद गीता के इस प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं ओनली 7 डेज़। बिल्कुल ज़रूर आएँ, और यहाँ पर आप खुद आके जो आने का अपना अनुभव होता है वो डिफरेंट है, वो उसको आपको ही नहीं बता सकता। तो खुद का एक्सपीरियंस आप करें आकर। और स्वामी जी, मैं आपसे मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस्कॉन के बारे में, और थोड़ा मंदिर का भी क्या मतलब विशेषता है, और ये मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में। हाँ, मंदिर तो इसको बने हुए लगभग अभी हो गए हैं 20-22। आई थिंक, हाँ, मैं पढ़ रहा था अभी विकिपीडिया 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली यहाँ पर एक 700 किलो की भगवद गीता भी है इधर, वर्ल्ड की लार्ज। लोगों को। जी, मैं बिल्कुल दिखाता हूँ स्वामी जी। तो वो भी नरेंद्र मोदी जी 2 साल पहले आकर के यहाँ उन्होंने इनॉग्रेट किया था। बट पॉइंट ये नहीं है कि कितनी बड़ी गीता है, मेन पॉइंट है कि इस गीता के संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमको बड़ी गीता लेनी पड़ती है। छोटी गीता लोग लेते नहीं हैं, तो बड़ी गीता के माध्यम से हम एक तरीके से उसको एडवर्टाइज करते हैं कि लोग इसको पढ़ें, सीखें, समझें, उतारें जीवन में। तो थैंक यू सो मच। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई लोकेशन पर। आज के लिए आपका धन्यवाद। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई इस मंदिर के बारे में, तो हम उनका दिल से धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हम कुछ देर और रुके यहाँ पर, हमने यहाँ की वाइब्स को एब्जॉर्ब किया,
because until and unless you don't experience, you don't feel, you are not touching the depth of spirituality. तो यहाँ की वाइब्स बहुत ही हीलिंग थी। शाम का समय एक अलग ही तरह की एनवायरनमेंट में शांति, एक अलग ही प्रेम और ये अमेजिंग लाइट्स। दोस्तों, ये है सबसे बड़ी दुनिया की भगवद गीता। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका खुद ही उद्घाटन किया था। लोग इसकी वैल्यू समझे, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। शाम का व्यू देखिए आप। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। इट्स अमेजिंग थिंग। पूर्णिमा एकादशी को यहाँ आने का एक अलग ही महत्व होता है। लोग एकादशी पे फास्टिंग भी करते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग चीज़। अब देखें मंदिर का व्यू शाम के समय। व्हाट अ अमेजिंग प्लेस। ये जो चांद पूरी तरह से खिला हुआ, उसकी रोशनी में मंदिर कितना प्यारा एकदम। इसे हम लोग आगे बढ़ते हुए सामने ही मंदिर के एक गरुड़ जी की मूर्ति स्थापित है, उसके चारों ओर लोग चक्र लगाते हैं। आगे देखिए लोग पुनः किस तरह झूमते हुए, आनंद करते हुए और एक अलग ही मस्ती में आगे बढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जो शो दिखाया जाता है वहाँ पर, वो आप एक बार उसके अंदर भगवद गीता की अलग अलग रोचक कहानियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि इंसान क्या है, इंसान कहाँ की ओर जा रहा है, भगवद गीता का सार क्या है। इन कुछ वीडियो और एक्सपो के द्वारा शो करने की कोशिश की गई है कि भगवद गीता का सार क्या है, कैसे आप सुख दुख से पार जा सकते हैं, कैसे आप जो शाश्वत आनंद है, शाश्वत प्रेम है, उसको पा सकते हैं, कैसे हर कोई व्यक्ति लाइफ में दुख को अनुभव करता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो या फिर वो आत्मिक हो। इन्हीं दुखों से पार जाना स्पिरिचुअलिटी का सार है दोस्तों। तो ये आप लोग ज़रूर आके एक्सपो देखें। इसकी टिकट कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, ओनली 150 रुपीज़ की टिकट है इसकी। आप पूरे एक्सपो को विज़िट कर सकते हैं, अच्छे से देखें और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। लाइट एंड साउंड शो के थ्रू श्रीला प्रभुपाद जी की भी पूरी कहानी इसमें बताई गई है। आई रियली लाइक दिस एक्सपीरियंस इन स्टोरी फॉर्मेट। दिस एक्सपीरियंस इज रियली make impression on your mind and you learn something from this expo. So please आप ज़रूर आएँ, इस जगह को अनुभव करें, महसूस करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आकर अपने अंदर को जान सकते हैं, आप अपने अंदर को परिवर्तित कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की एक एनर्जी को गेन कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग ब्लॉग के एंड में पहुंचते हुए और आपने काफ़ी कुछ इस ब्लॉग में इस्कॉन दिल्ली मंदिर से रिलेटेड जाना और महसूस किया। अब मैं आप सभी से चाहूँगा कि यू विजिट दिस टेम्पल फिजिकली एंड एक्सपीरियंस दिस ग्रेट, रिमार्केबल एंड मैजेस्टिक प्लेस फॉर ए कृष्णा डिवोटी। I want to explain that Krishna is not just a person, it's a state of consciousness. When your consciousness is fully purified, then that consciousness is Krishna consciousness. So in your life, आपको भी प्रयत्न करना चाहिए कि आप उस शुद्ध चैतन्य का अनुभव करें, उस चैतन्य आनंद का अनुभव करें और अपने जीवन में मस्त रहें और कुछ अच्छा करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय। सो दोस्तों, हम लोग फाइनली ब्लॉग के एंड में आ चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो आप लोग इसको पसंद करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।